So again, hello. Now we are going to discuss about what the differences between the exe file and the differences between the class file. So what are the various differences between the exe file and the dot class file? Clear? So our first difference is, look, this is a very important again interview question. लाइक यू गाइज आर फ्रेशर, आप फ्रेशर के तौर पर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और वहां पर आप अपने रिज्यूम में, क्योंकि एक फ्रेशर के रिज्यूम में क्या होता है, या तो सी पढ़ा हुआ है, जावा पढ़ा हुआ है, तो आपसे ज्यादा पूछने के लिए तो कुछ नहीं ना, तो वो आपसे कंपैरिजन पूछेगा कि आपने अगर पढ़ा हुआ है, सी भी पढ़ा हुआ है, आपने अगर जावा भी पढ़ा हुआ है, तो दोनों में अच्छा बताओ क्या होगा। ठीक है, आप exe फाइल बताओगे, डॉट क्लास बताओगे, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट डायरेक्टली आपसे अगर कोई पॉइंट टू पॉइंट अगर पूछना चाहता है तो हम उसको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देंगे। कैसे? कि फर्स्ट डिफरेंस इज डॉट exe फाइल इज अवेलेबल अप टू सी एंड सी प्लस प्लस। डॉट exe फाइल जावा में तो नहीं होगी ना, ऑब्वियसली। सो डॉट exe फाइल इज अवेलेबल अप टू सी एंड सी प्लस प्लस, एंड डॉट क्लास फाइल इज अवेलेबल अप टू जावा ओनली। नाउ difference number second, what is what .exe file actually contains? So .exe file contains directly executable code. We have already know about this. What is the directly executable code in our previous session? Clear? So what is dot class file contain? Dot class file contains the byte code. And what is byte code? Byte code is not the directly executable code. Bytecode is not directly executable code, okay, and it is an intermediate code. Clear? Now .exe file, it's a third point. .exe file is a platform dependent file. Why platform dependent file? because the same operating system is required, and that is a .exe file is came out from the C programming language after the compilation of a C programming language. So dot class file is a platform independent file. .exe file is a platform dependent file, okay, and dot class file is a platform independent file. Clear? समझ में आया क्या differences है? Okay. So next interview question, okay, so next interview question is, what are the differences between hash include statement and import statement? Clear? What are the differences between hash include statement and import statement? You know why I am comparing this? मैं इसको compare क्यों कर रहा हूं? We have a strong reason behind that, because we have already studied C and C++. Okay, so we have already know about this, like how to make a C program and how to compile it, how to execute it, what are the various output will become. Clear? So थोड़ा बहुत हमको पता है उसके बारे में. Clear? So now हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि लुक सी में कैसे होता था और जावा में कैसे होगा। तो अगर आपको जावा का समझ में आ जाएगा तो सी का, अगर जिनको सी के बारे में नहीं पता तो उनको जावा से पता चल जाएगा ओके सी में ऐसा कुछ होता होगा, और जिन्होंने सी पढ़ी हुई है उनको तुरंत समझ में आएगा ओके सी में हम लोग इस तरह से काम करते थे, अब जावा में क्या चेंजेस आए हुए हैं। ठीक, तो क्या 3 डिफरेंसेस हैं, 4 डिफरेंसेस हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज hash include statement is available up to C and C++ only. ठीक है, हैश इंक्लूड स्टेटमेंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हैश इंक्लूड स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही पाया जाता है। इंपोर्ट स्टेटमेंट इज अवेलेबल अप टू जावा ओनली। क्लियर? इंपोर्ट स्टेटमेंट। ओके, डिफरेंस नंबर 2, हैश इंक्लूड स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड to include the predefined library available in the form of header files. hash include statement क्यों यूज किया जाता है? hash include statement can be used to include the predefined library, whatever the number of functions. कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो भी नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं हमारे, लाइक हम बात कर रहे हैं गेट फंक्शन की, हम बात कर रहे हैं प्रिंटफ फंक्शन की, हम बात कर रहे हैं किसकी, स्कैन ऑफ फंक्शन की, या हम बात कर रहे हैं किसी भी कोई भी इनबिल्ट प्रोसेस, कोई भी इनबिल्ट फंक्शंस, कोई भी इनबिल्ट थिंग्स जो कि
किसने प्रोवाइड कर रखी है? सी ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन वो किस फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रखी है? हेडर फाइल्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर रखी है। तो वी हैव टू यूज दोज हेडर फाइल्स, और उन हेडर फाइल्स को यूज करने के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी? हैश इंक्लूड स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या करता है? इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन जावा टू इंक्लूड द प्री डिफाइंड लाइब्रेरी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस। लुक, व्हाट इज द डिफरेंस? सी में जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है वो किस फॉर्म में होती है? हेडर फाइल्स के फॉर्म में। और जावा में जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है वो किस फॉर्म में होती है? पैकेजेस के फॉर्म में। क्लियर? सो इंपोर्ट स्टेटमेंट और हैश इंक्लूड स्टेटमेंट हम लोग क्यों यूज करते हैं? हैश इंक्लूड स्टेटमेंट इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग उस प्री डिफाइंड लाइब्रेरी को इंक्लूड कर सकें, ठीक है, जो कि किस फॉर्म में होती है? हेडर फाइल्स के फॉर्म में। और इंपोर्ट स्टेटमेंट हम लोग क्यों यूज करते हैं जावा में? हम लोग प्री डिफाइंड लाइब्रेरी को ही यूज करना चाहते हैं, लेकिन वो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी किस फॉर्म में होती है? पैकेजेस के फॉर्म में। दोनों पॉइंट क्लियर हुए? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हैश इंक्लूड स्टेटमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय प्री प्रोसेसर। Clear? So hash include statement are recognized by preprocessor, while the import statements are recognized by compiler and JVM. Compiler is a different thing and JVM is a different thing in the perspective of Java. Java के perspective में ये जो आपका compiler और JVM है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। We will discuss about it. बहुत डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ हम सिर्फ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि ठीक है, कंपाइलर क्या होता है, जेवीएम क्या होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज हैश इंक्लूड स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग स्टैटिक लोडिंग, while import statement provides dynamic loading. We know about what is static loading and what is dynamic loading. Clear? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? Okay. Next point. By using single hash include statement, we are able to include only one header file. While in Java, by using import statement, we are able to include more than one class or interface of the same package. When we were working in C and C++, by that time अगर हमको जरूरत पड़ती थी, like we want to use the printf function and scanf function, so we were using which header file? stdio.h. okay, but when we are using the getch function and clr function, by that time we were using conio.h header file. ठीक है, कि हमें जितने फंक्शंस यूज करने हैं उन फंक्शंस के लिए वो अगर अलग अलग प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी में या अलग अलग हमारी हेडर फाइल्स में है, तो हमें उन सारी को यूज करने के लिए बार बार हैश इंक्लूड स्टेटमेंट को यूज करना पड़ता था। ऐसा तो नहीं होता था हैश इंक्लूड stdio.h कॉमा conio.h कॉमा math.h, इस तरह से तो नहीं होता था। ठीक है, बट इन जावा में जब हम बात करते हैं तो जावा में जो भी डिफरेंट क्लासेस हैं, जो भी डिफरेंट इंटरफेसेस हैं, आई नो यू डोंट नो अबाउट द क्लास एंड इंटरफेस, ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट इट अगेन, ठीक है, लेकिन अभी इतना समझिए कि एक क्लास के एक पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी, एक पैकेज के अंदर जितने भी इंटरफेसेस होंगे, वो अगर सेम पैकेज के अंदर हैं, एक ही पैकेज के अंदर क्लासेस भी हैं इंटरफेसेस भी हैं, ठीक है, तो उन सारी क्लासेस को, उन सारे इंटरफेसेस को हम एक ही इंपोर्ट स्टेटमेंट से कॉल करा सकते हैं। कोई दिक्कत? ओके, सो टुडे हम सिर्फ बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट डिफरेंस, लाइक व्हाई द पॉइंटर्स आर नॉट अवेलेबल इन जावा, ठीक है। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।